we learned in the first week of this series और पहले हफ्ते में इस संदेशों की श्रृंखला में हमने सीखा that we can bring our hard questions to God and our doubts to God without worrying. कि हम अपने कठिन प्रश्नों को, अपने शकों को बिना किसी चिंता के परमेश्वर के सम्मुख ला सकते हैं. And that we can also lament before God, we can cry out to God and He will listen. और हम विलाप कर सकते हैं, शोक कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं रो के, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे. And then last week we also noticed और पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा था from chapter 1 पहले अध्याय से हबक्कुक की पुस्तक से that we need to discover the discipline of waiting upon the Lord. और हमें अपने आप से खोज करनी है कि हम किसी प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख जब किसी बात का इंतजार करते हैं तो हम एक अनुशासन में भी रहें. Watchful waiting for God to listen and answer us. और जागृत रहें और परमेश्वर के सामने बने रहें और प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए. Even when God doesn't make sense, His ways do not make sense, God has asked us in the past week that we should be on the watchtower and waiting upon the Lord. और चाहे हमारे सामने कुछ बातों का कोई मतलब हमें नहीं दिखाई देता, तब भी जैसा हमने पिछले हफ्ते देखा कि यदि हम किसी इंतजार वाले जगह पर हैं तो हम उसमें बने रहें. And today in chapter 2 of the book of Habakkuk, और आज हम देखेंगे हबक्कुक की पुस्तक से दूसरे अध्याय से we finally get to hear God's answer to Habakkuk. और हम अब जाके परमेश्वर के उत्तर को जो वो हबक्कुक नबी को देते हैं वो देखेंगे. And it's an amazing answer. और एक बड़ा अच्छा एक जवाब है. That's summarized in 4th verse of chapter 2. जिसमें हमको इसका विवरण मिलता है चौथी आयत दूसरे अध्याय की. That says the just shall live by faith. जिसमें लिखा है धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा. It's such a monumental verse. और बहुत ही एक अच्छी आयत है ये. That in the New Testament several apostles cited it. कि नए नियम में कई प्रेरितों ने इस आयत को दोहराया. And we also will see today आज भी हम देखेंगे that historically this verse became the foundation of the Reformation movement. और जो नींव है रिफॉर्मेशन मूवमेंट की, ये उसकी एक बड़ी अच्छी सबक वाली आयत बन गई. And so this verse, after thousands of years since it was given to Habakkuk, और कई हजार वर्षों के बाद जब से हबक्कुक नबी ने इस वाक्य को बोला, may also transform our lives and everyone who is listening to this message. तो इस संदेश के द्वारा हर एक का जीवन में बदलाव दिखाई देने पाए. Shall we turn to reading the scriptures? आइए हम वचन में से निकालें from the book of Habakkuk. हबक्कुक की पुस्तक. And today we shall read the whole chapter from chapter 2 verses 2 onwards. और आज हम उस पूरे अध्याय को देखेंगे दूसरी आयत से आगे बढ़कर. Verse 2. Anybody? Amen. Thank you, beta. God bless you. Let's pray. Gracious Father, we thank you for the word. Speak to us, challenge us. And Lord, we pray that help us mold ourselves to the image of your Son, Jesus Christ. Amen. Amen. This is God's answer to what Habakkuk has been praying and asking God. और ये जो पढ़ा गया है ये वो उत्तर है, जो उन सवालों का उत्तर है जो हबक्कुक अभी तक पूछते आए हैं. And in that answer, God is asking Habakkuk to do something. और इस उत्तर में परमेश्वर हबक्कुक से कुछ करने को कह रहे हैं. And what God is asking Habakkuk is write it down, write the vision down. और परमेश्वर हबक्कुक से कह रहे हैं कि इसको तू लिख ले. Write it down in verses 2 and 3 of chapter 2. और दूसरे अध्याय की दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है
write the vision, दर्शन की बातें लिख make ले, it plain on the tablets, साफ साफ लिख दे पट्टियों पर, so he may run who reads it. ताकि दौड़ते दौड़ते हुए सहज से पढ़ने पाए. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. आमेन. क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है. इसमें धोखा ना होगा. चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगा. So why does God want Habakkuk to write it down? क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हबक्कुक इस दर्शन को लिख लें? Remember, he was going through a lot of suffering in his own country. आप याद रखें कि हबक्कुक अपने ही देश में बहुत ही परेशानी से होकर गुजर रहे हैं. There was corruption in the temple. और बहुत ही करप्शन है मंदिर में. There was corruption among the priests and sinfulness throughout Judah and Israel. और पूरे यहूदा में और पूरे इस्राएल में बहुत ही भ्रष्ट बातें चल रही हैं. In order to punish them, his own people, इसलिए अपने ही लोगों को सजा देने के लिए God was bringing the Babylonians, the idol worshippers. और परमेश्वर जो है बाबुल के लोगों को जो मूर्ति पूजक है उनको लेकर आ रहे हैं. This confused the prophet Habakkuk. और इस बात से हबक्कुक नबी जो है वो परेशान है. But now God is revealing his purpose to him as well as to his people. लेकिन अब परमेश्वर अपने जो उनका कार्य है उसको प्रकट कर रहे हैं अपने लोगों के लिए And और हबक्कुक के लिए. and God wants it to be written down. और परमेश्वर चाहते हैं कि ये लिख लिए जाएं. Why? Because when we are in suffering, इसलिए क्योंकि जब हम परेशानी में होते हैं, when we are waiting for God's answers to our prayers, जब हम अपने उत्तर के लिए जो प्रार्थनाएं हम प्रभु के सामने चढ़ा रहे हैं, जब उसका इंतजार हम करते हैं, when God's word says something and our circumstances reveal something else, जब परमेश्वर का वचन कुछ कहता है और हमारी जो परिस्थिति है जिसमें से हम होकर गुजर रहे हैं वो कुछ और कहती है, as human beings we need something tangible to hold on to. तो हम मनुष्य होने के नाते हम कुछ ऐसी चीज चाहते हैं जिसको हम पकड़ लें. Our faith needs anchors, my dear friends. मेरे मित्रों, हमारे विश्वास को एंकर की जरूरत होती जो हमको पकड़े रहे, थामे रहे. And that anchor cannot be more than the word of God. That Hallelujah. is where we can stand ourselves Amen. and hold on to. और जो सबसे बड़ा एंकर, जो सबसे ज्यादा हमें स्थिर रखने वाली बात है, वो परमेश्वर के वचन के अलावा कुछ भी नहीं. The word of God, the written word of God, the logos, जो परमेश्वर का जो वचन है, जो लिखा हुआ शब्द है, जो लोगोस है, is the most powerful anchor that you and I need in our suffering times. हमारे जो चिंताजनक समय में, परेशानी के समय में सबसे ज्यादा हमें पकड़ देने वाला एक एंकर है परमेश्वर Because का वचन. when we go through circumstances in our lives, क्योंकि जब हम अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं अपने जीवन में, when they confuse us, जब हम विचलित हो जाते हैं, the good and the bad of this world confuses us like it did Habakkuk. जब अच्छी और बुरी बातें मिलकर हमको परेशान करती हैं, जैसे हबक्कुक ने अपने When your जीवन में देखा, feelings tell you that God seems to have abandoned you, जब हमारी भावनाएं हमसे कहती हैं कि परमेश्वर, ऐसा लगता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया. when you read the scriptures, जब हम वचन को पढ़ते हैं, when you turn toward the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन की तरफ मुड़ जाते and हैं, one verse pops out of all the things that are there, और जो भी हम पढ़ते हैं उसमें से एक आयत जैसे उछल कर हमारे सामने आ जाती है. maybe it is like, I shall never leave you alone, I shall never forsake you. और हो सकता है वो एक छोटी सी आयत हो, मैं तुम्हें ना त्यागूंगा ना छोड़ूंगा. And in the midst of the waves of this world, और जो दुनिया की सारी ये लहरें हमारी चारों तरफ चल रही हैं, that particular verse calms you down and you are anchored on the Hallelujah. sands of the beach. तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र के किनारे जहाँ लहरें हैं, उसके मध्य में हमें एक थामने वाला एक वचन मिल जाता That's है. why God told Habakkuk, इसलिए परमेश्वर ने हबक्कुक से बोला,
Write it down and make it plain so that everybody can understand. लिख लो और इतनी साधारण भाषा में लिखो कि सहज से सब समझने पाए। That's why the word of God, इसलिए परमेश्वर का वचन from the book of Genesis to the book of Revelation, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक is written down so plainly इतनी सहज भाषा में लिखा गया that even a small child can understand it, and the greatest theologian that ever lived on the face of the earth can also swim in it. कि ये इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि छोटा बच्चा और जो बहुत बड़े स्कॉलर्स हुए हैं वो भी उसको समझ सकते हैं, उसमें वो तैर सकते हैं। Because when the hard times come, and they shall surely come, क्योंकि जो कठिन समय आते हैं और वाकई में आएंगे हमारे सामने, you are going to need some anchors to be grounded. तो हमें ऐसे एंकर्स की जरूरत है जो हमको थामे रहेंगे। And that will be the promises of God in the Word of God. और ये परमेश्वर के द्वारा दिए गए वायदे हैं जो हमको वचन में मिलते हैं। And that's why God told Habakkuk in his answer, please write it down and make it plain. इसलिए परमेश्वर ने बिल्कुल स्पष्ट रीति से हबक्कुक नबी से कहा कि इन बातों को लिख ले। And then he also said, फिर उसने ये भी कहा in verse 3, तीसरी आयत में, wait for it. लेकिन रुका भी रहे। If it seems slow, यदि ऐसा लगता है कि ये थोड़ा देर लग रही है, the answer that I'm going to give you, जो उत्तर मैं तुमको देने वाला हूँ, the vision that I'm going to reveal to you, जो दर्शन मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, it may linger, it may seem slow. ऐसा लग सकता है कि ये देर लग रही है, टाइम लग रहा है। Don't run from it. उससे भाग मत चलो। Don't run from me. मुझसे भागना मत। Don't run from the word of God, from the promises of God. परमेश्वर के वचन से दूर मत भागना, ना उसके वायदों से Because it will surely come, so you gotta wait for it. ये वचन जो है ये पूरा जरूर होगा तुम्हें, लेकिन इंतजार करना है। Friends, I don't know how long you have been waiting for an answer from God for your prayers. मेरे मित्रों, मुझे नहीं पता आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए कब से इंतजार में हैं। Today, God's answer to you is, आज परमेश्वर का उत्तर आपके लिए है। if God has promised you, यदि परमेश्वर ने आपसे वायदा He किया, did not promise an imminent fulfillment, immediate fulfillment. परमेश्वर ने ये हमसे वायदा नहीं किया ये तुरंत पूरा होगा, But God's promises are certain. They may Hallelujah. delay, they may be slow, Amen. but you can hang on to the promise that He shall fulfill those promises in your life. हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन सिद्ध रूप से पूर्णतः पूरे होंगे, ये आप ध्यान रखें। God may seem late, but He is not actually late. He is on His perfect timing. हमें लग सकता है कि परमेश्वर लेट कर रहे हैं हमको उत्तर देने में, लेकिन आप याद रखें परमेश्वर हमेशा समय पर हमारा उत्तर देते हैं। And if anything, Habakkuk has been revealing to us, और यदि कुछ भी हबक्कुक हमारे लिए प्रकाशन दे रहे हैं it वचन is में, this, that God doesn't work in the way that we like Him to work. ये हमें याद दिला रहे हैं कि उस तरह से परमेश्वर हमको जवाब नहीं देते जैसा हम चाहते हैं। God doesn't work on our timeline. परमेश्वर हमारे समय के मुताबिक कार्य नहीं करते। It may feel delayed to us, हमको लग सकता है कि देरी हो रही है, but from God's eternal perspective, लेकिन परमेश्वर का जो अनंत काल का जो दृष्टिकोण है, everything in our life will work out according to His perfect plan Hallelujah. and purpose. हर एक चीज जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने रखी है वो सिद्ध समय से सिद्ध योजना के अनुसार पूरी होगी। This week I want you to do one thing. इस हफ्ते में एक बात आपसे करने के लिए कहना चाहता हूं। Write down the promises Hallelujah. you think you have received from the Lord for your life. आप इस हफ्ते में चाहता हूं इस बात को लिख ले, वो वायदे जो परमेश्वर ने आपको आपके जीवन के लिए दिए हैं। Maybe put it on a small card somewhere, put it in your Bible, put it where you can easily access it. चाहे वो एक छोटा सा कार्ड हो, चाहे एक छोटी सा पेपर हो, उसमें लिख लें और अपने बाइबल में रख लें जहां पे आप उसको आसानी से ढूंढ सकते Because हैं। we are almost always on our phones. Maybe write it in your phone as a note. या हो सकता है आप अपने फोन में एक नोट की तरह रख लें, क्योंकि पूरे वक्त फोन हमारे पास होता है। Put it every day to be able to read it, so that God's word reminds you to wait for it, because God has fulfilled all His promises, and He shall fulfill your Hallelujah. promise too also. आमीन। और उस नोट में आप इस बात को अपने आप को याद दिलाने के लिए उसको देखते रहें कि परमेश्वर ने जो आपसे वादा किया है
वो स्पष्ट रीति से सिद्ध समय से जरूर पूरा होगा। Now, secondly, दूसरी बात, in his answer to Habakkuk, अपने उत्तर में जो वो हबक्कुक को देते हैं, God showed him two ways. परमेश्वर ने उन्हें दो रास्ते दिखाए। In chapter 2 and verse 4, हबक्कुक दूसरा अध्याय उसकी चौथी आयत में, if anybody can read that again, please quickly. कोई अगर पढ़ सकता है। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। So God is talking about the enemy Babylonians that Habakkuk was concerned about. और यहाँ पर परमेश्वर बाबुल के लोगों के विषय में बात कर रहे हैं जिसके लिए हबक्कुक को चिंता थी। The enemy's soul is puffed up. वो कहते हैं जो दुश्मन का जो जहन है वो फूला हुआ है, It is not upright at all. वो सीधा बिल्कुल नहीं है। But there is this beautiful word, and if you have been listening to me, you know what is my favorite word in the Bible? और यहाँ पर एक बहुत सुंदर शब्द है, और यदि आप मुझे सुनते आए हैं तो आपने देखा होगा कि मेरा सबसे फेवरेट शब्द क्या है? But. परंतु। There may be several things going on, but then comes this word, but it changes everything. बहुत सी बातें हमारे इर्द गिर्द चल रही होंगी, लेकिन जब एक शब्द आता है परंतु, तो वो सब कुछ बदल देता है। But the righteous, the just shall live by his faith. परंतु धर्मी अपने जन के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। There are two ways of living that God is showing Habakkuk. दो तरह के जीवन है जो परमेश्वर हबक्कुक को दिखा रहे हैं। That is one, that of the Babylonians, the enemy, the people who are puffed up, who are not upright. एक ऐसा जीवन है जिसमें जो दुश्मन लोग हैं, परमेश्वर के बाबुल के लोग, वो बड़े फूले हुए हैं। And they seem to rejoice that they are puffed up. They seem to rejoice that they are not upright. It doesn't seem to bother them at all. और वो इस बात से चिंतित भी नहीं है कि उनका मन फूला हुआ है और उनके मन सीधे नहीं है। And that's the Babylonians that God was showing Habakkuk. He was concerned about them. Yes, God says they are like that. I know it. और जब हबक्कुक परेशान होते हैं इस बात से कि बाबुल के लोगों को परमेश्वर वहां ला रहे हैं, तो परमेश्वर ये दिखाते हैं, मैं जानता हूँ ये लोग फूले हुए हैं। These are the people who do not depend upon God. ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं हैं। They say, I don't need God. वो कहते हैं हमें तो परमेश्वर की जरूरत नहीं। I can secure my own future. मैं अपना भविष्य अपने आप सिक्योर कर सकता हूँ। I trust in my own strength, in my wisdom, in my resources. और मैं अपने ज्ञान में और अपने सब कुछ जो मेरे पास ताकत है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। They trust in self-reliant on everything in life. वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर रहते हैं। That's why they become prideful. इसीलिए तो वो घमंड से भर जाते हैं। That's why the word puffed up. They are puffed up. They are full of knowledge about themselves that they think they can everything achieve by their own strength. और उनका मन फूला हुआ कहते हैं कि वो सोचते हैं कि सब कुछ हम अपने आप ही प्राप्त कर लेंगे, हमें किसी बात की जरूरत नहीं। And what it leads to, God says they are not upright, their ways are not upright, they are not righteous at all. और इसके कारण क्या होता है? इस वजह से उनका मन सीधा नहीं है, वो धर्मी नहीं है। His desire, one version says, their desires are not upright. Not only what they do, but even what they desire is not righteous at all. और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि ना केवल वो जो सोचते हैं या जो करते हैं, लेकिन उनका मन सीधा नहीं है। Their desires, their actions are crooked and they are bent and they are evil. और उनके जो कार्य हैं वो बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। And they may look stable, but they are unstable. वो लगते तो स्थिर है लेकिन वो है अस्थिर। That's one way of living life on this earth. ये एक तरह का जीवन है इस पृथ्वी पर रहने वाला। But then there is a second way that God is showing to Habakkuk. लेकिन एक दूसरे तरह का जीवन है जो परमेश्वर हबक्कुक नबी को दिखा रहे हैं। And that is the way of living by faith as a just, as a righteous person. और वो है एक धर्मी जन की तरह जीवन बिताना जो विश्वास पर निर्भर है। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? Simply means complete dependency upon the Creator God.
और साधारण रूप से यह है कि परमेश्वर के ऊपर पूर्णतः से निर्भर होना। One version of this verse says, एक अनुवाद में इस प्रकार है, the righteous person will live by his faithfulness. और उसके अनुसार लिखा है कि जो विश्वासी जन है, जो धर्मी जन है, वो अपनी विश्वास योग्यता के कारण जीवित Or रहेगा। some versions say by his faith. और किसी अनुवाद में लिखा है वो अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। Now the word live is very crucial for me. और मेरे लिए शब्द जीना जो है वो बहुत ही जरूरी है समझना। In the Hebrew language, it doesn't mean they will just survive. और इब्रानी भाषा में इसका केवल ये मतलब नहीं है कि वो जी सकेंगे। They will be hanging on to faith and surviving somehow by any means. कि इसलिए नहीं कि वो केवल उसको पकड़े रहेंगे और अपने दुश्मनों से बचे रहेंगे। No, the word says in the original language, लेकिन जो मूल भाषा है उसमें उसका अनुवाद यह है, they will be flourishing, they will be thriving, they will be experiencing fullness of life. वो पूर्णतः से परमेश्वर की भरपूरी जो जीवन की है उसको अनुभव करेंगे। The righteous person जो धर्मी जन है, who is upright in his ways, जो सीधे मन वाला है, they will be thriving, they will be enjoying life that is possible by faith. और वो अपने जीवन में पूर्ण तरह से संपन्न रहकर इस जीवन को खुशी के साथ बिताएंगे। That is exactly the life that Jesus was talking about in the New Testament. यही तो वो जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में बात कर रहे हैं नए नियम में। When he said, I have come to give you life. जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया, And it's not just life, it is abundant life. और ये केवल साधारण जीवन नहीं लेकिन बहुतायत का Where you जीवन, do not just survive merely, जिसमें केवल तुम यूं ही नहीं जियोगे, but you thrive because God wants you to make you flourish. लेकिन परमेश्वर आपको उसमें खुश करने के लिए, संपन्न करने के लिए जीवन देगा। And what does this practically mean? और प्रैक्टिकल देखें जो क्या उसका अर्थ है। This verse shows us the monumental importance because the apostles applied this several times in their lives and in their writings. क्योंकि जो प्रेरित हैं उन्होंने अपने लेखों में हमको ये दिखाया कि उनके जीवन में ये कितना महत्वपूर्ण था। I don't have the time to look into all the details, but these are the 3 verses where we see the Apostle Paul and the writer of Hebrews quoted this scriptures from Habakkuk. और मेरे पास समय नहीं कि मैं सारे वचनों में जाऊं, लेकिन ये कुछ आयतें हैं जो हम देखेंगे जिसमें प्रेरितों ने इस बात को लिखा धर्मी जन के लिए। So for example, Romans chapter 1 and verse 17 says, उदाहरण के लिए हम निकाले रोमियो 1 और उसकी 17 आयत, For in the gospel the righteousness of God is revealed. क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। A righteousness that is by faith from first to last. जो शुरू से आखिर तक बनी रहती है। As it is written, Paul says, जैसे पौलुस कहते हैं, लिखा है, righteous shall live by faith. विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। And then again in Galatians chapter 3 and verse 11, और फिर हम जाएं दूसरी पत्री में गलतियों की उसका तीसरा अध्याय 11 Paul में writes, पौलुस लिखते हैं, Clearly no one who relies on the law is justified before God. और पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता है, Because the righteous shall live by faith. क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। So Paul is finding in the words of Habakkuk इसलिए पौलुस हबक्कुक के शब्दों में ये पाते हैं, the very heart of the gospel that he was proclaiming. वो जो सुसमाचार का जो एक हृदय है जिसकी वो घोषणा कर रहे हैं। And what is the very heart of God's word, the gospel? और सुसमाचार का जो मध्य केंद्रित बात है वो क्या है? That our works do not matter in order to get the grace of God and the salvation that comes through Jesus Christ. और हमारे कार्य के द्वारा हमको उद्धार नहीं मिल सकता, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा यीशु में हमें मिला है। We are made right with God. हमको परमेश्वर के साथ सीधा बनाया गया। We are declared righteous to God. और हमें परमेश्वर के लिए धर्मी ठहराया गया, Not by our own goodness. हमारे अपने भले कामों के कारण Not नहीं, by our good karma.
हमारे अच्छे कर्म के द्वारा not नहीं, by our own efforts, हमारे अपनी मेहनत के द्वारा नहीं, not by our own religious performance, not by our own money that we give to God, हमारे धार्मिक कामों के द्वारा नहीं, या उस पैसे के द्वारा भी नहीं जो हम देते हैं परमेश्वर के लिए, only by the faith that is possible in the Son of God, Jesus Christ. लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने के द्वारा जो परमेश्वर के बेटे हैं। When we trust completely in the work of God accomplished on the cross, और जब हम परमेश्वर के उस कार्य में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं जो पूर्ण हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर, by faith God justifies us, declares us righteous. विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमको धर्मी ठहराते And हैं। then Hebrews chapter 10 and verse 28 also says, फिर इब्रानियों की पुस्तक में उसके 10 अध्याय की 28 आयत में, but my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. और परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानियों 10:28 में। Thank you. God bless you for reading that. परमेश्वर आपको आशीष दे पढ़ने के लिए। And thousands, at least 1500 years later, after these apostles used book of Habakkuk, और 1500 वर्ष पश्चात जब ये शब्द बोले गए, in 1500 AD, और 1500 AD में there was a very significant person एक और बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए who was going through some turmoil spiritually in his life, जो अपने जीवन में बड़ी परेशानी के मध्य से गुजर रहे थे, and that was Martin Luther. और वो थे मार्टिन लूथर। He was a Catholic priest. वो कैथलिक प्रीस्ट थे। He believed, as they were teaching in those days, it is our works that we can please God. और वो बोल रहे थे कि हमारे कार्य हैं, कर्म हैं जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते So हैं। this German Catholic monk और ये जो कैथलिक प्रीस्ट थे was trying to please God through every means possible. वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाह रहे थे हर एक तरह से। And he said to himself several times, how can I am a sinner, how can I please God, what can I do to completely please God? और वो अपने जीवन में जहन में ये सोच रहे थे सब अच्छे कार्य करने के द्वारा कि मैं क्या ऐसा कार्य कर सकता हूँ जिससे परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो। He fasted, he prayed, he beat himself physically, literally, he did everything possible. और उन्होंने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थना की, उन्हें अपने आप को परेशान किया, अपने आप को मारा, सब कुछ जो वो कर सकते थे। He wanted to be good enough to God so that he will be pleased with him and he could live in peace. और वो चाहते थे कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊं ताकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहे। And then he came to this verse that we just read from Romans chapter 1 and verse 17. और फिर वो जब वचन को पढ़ रहे थे तो वो यहाँ तक पहुँचे रोमियो की पत्री में जो लिखा हुआ है पहला अध्याय 17 आयत में, where Paul is actually quoting from Habakkuk chapter 2 and verse 4. और वो हबक्कुक की पुस्तक से जो ये वचन लिया गया। And Martin Luther read this several times और मार्टिन लूथर ने कई बार इसको पढ़ा because he said the righteous, the just shall live by faith. क्योंकि उसमें लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। So for in Martin Luther says, और मार्टिन लूथर कहते हैं, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. और वो कहते हैं कि परमेश्वर की जो धार्मिकता वो इस बात में प्रकट होती है विश्वास के द्वारा, क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। This verse from Paul's letter to Romans, और ये जो आयत पाई जाती है रोमियो की पत्री में from Habakkuk chapter 2, जो कि हबक्कुक के दूसरे अध्याय से ली गई, was a turning point in the life of Martin Luther. और ये आयत जो थी ये मार्टिन लूथर के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। It changed everything in him. उनके जीवन में सब कुछ He बदल said, गया। I don't need to do anything to please God. वो कहते हैं मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। Christ has done everything for me on the cross. प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया मेरे लिए क्रूस पर, And my faith in him is what justifies me to God. और मेरा विश्वास जो उसमें है वही मेरे लिए काफी है। He didn't want to start a new church or a new denomination. वो कोई नई कलीसिया नए डिनोमिनेशन तो He नहीं just शुरू करना wanted चाहते थे। to
preach this gospel to the Catholic Church. और अब वो इस सुसमाचार को जो उन्होंने पाया उसको कलीसिया में जो कैथलिक थी उसमें बोलना चाहते They थे didn't want to hear the truth. और सच्चाई को लोग सुनना नहीं चाहते And थे that's where the Reformation started in the 1500s, which resulted in what is called the Protestant Church. और यहीं से रिफॉर्मेशन शुरू हुआ जहाँ से प्रोटेस्टेंट चर्च की शुरुआत हुई Today, you know where we are sitting? आपको मालूम है आज आप कहाँ बैठे हैं What is it called? The name of the church? इस चर्च को क्या बोलते हैं Lutheran Church. ये लूथरन चर्च है And what was the foundation of that? इसकी नींव क्या है What is the foundation of this church? इस कलीसिया की इस चर्च की नींव क्या What है is the foundation of your faith and mine? आपके और मेरे विश्वास की नींव क्या है The righteous shall live by faith. विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा Luther understood that और लूथर इस बात को समझ गए थे and he applied that in his life. और उन्होंने इस बात को अपने जीवन पर लागू किया So the third thing we see, और तीसरी बात हम देखेंगे if it was so important to Habakkuk, यदि ये इतना जरूरी था हबक्कुक नबी के लिए if this was so important to the apostles, और ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था प्रेरितों के लिए भी and if it was so important to Martin Luther, और यदि ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था मार्टिन लूथर के लिए what does living by faith means for you and me today? तो विश्वास के द्वारा जीवित रहना का अर्थ मेरे और आपके लिए क्या है I want to close with 4 things. मैं 4 बातों के साथ खत्म करना Number चाहूंगा 1, daily dependence on God is what it means to be living by faith. और हर दिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना यही अर्थ है विश्वास के द्वारा जीवित रहने का Every morning that you get up, you have no idea what the day holds for you. हर दिन जब आप सुबह उठते हैं आपको नहीं पता कि पूरे दिन में आपके साथ क्या होने वाला है You can pray, Lord, I trust in you. Whatever happens to me will be according to your will. लेकिन आप इस बात पर विश्वास और भरोसा कर सकते हो प्रभु जो कुछ भी मेरे साथ होने वाला है जो कुछ भी मैं करूँगा वो आपकी सब कुछ आपके अनुसार होगा You can live in dependence. हम निर्भरता पर जी सकते हैं You can live in peace. हम शांति में जी सकते हैं Not because everything is going to go well, इसलिए नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होगा but because you believe in an unchanging God who Amen. only desires the good for you. लेकिन आप ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो कभी बदलता नहीं और वो आपके लिए हमेशा भला ही चाहता है Secondly, दूसरी बात living by faith today means और विश्वास के द्वारा जीवित रहने का अर्थ है trusting in His promises. परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं उस पर भरोसा रखें When your bank account says one thing but God's promises say another thing, what are you going to trust and live by? जब आपका बैंक का स्टेटमेंट कुछ कहता है परमेश्वर का जो वायदा आपके लिए है वो कुछ कहता है तो आप किस बात पर भरोसा करेंगे When your bank account shows only probably Tim Hortons coffee or a McDonald's burger, यदि आपका बैंक अकाउंट केवल एक कॉफी या बर्गर बताता है but when you turn to the word of God and it says, my God shall supply all your needs. लेकिन वचन परमेश्वर का कहता है मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा According to His riches. अपने रिचेस के द्वारा In Christ Jesus. यीशु मसीह में Would you be trusting those promises Hallelujah. and walking by those promises every day? Amen. That is what living by faith means. तो क्या आप उन वायदों को जो परमेश्वर ने दिया है क्या उस पर भरोसा करेंगे When the medical report comes, the diagnosis comes, it says one thing. और जब मेडिकल रिपोर्ट आती है उसमें जो भी पाया गया वो आपको बताया जाता है वो दूसरा है And you turn to the word of God and you come across this verse. और आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं और आप इस वायदे को पाते हैं I am the Lord who heals you. मैं तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें चंगा करता हूँ Through His stripes we are healed. तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए When हैं you hold on to that promises is what it means to be living by faith. और जब आप इस वायदे को अपना बना लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं तो इसी का अर्थ है विश्वास के द्वारा जीवित रहना Thirdly,
तीसरी बात, enduring through uncertainty is what living by faith means. और जो भी हमारे जीवन में हम अनिश्चितता देखते हैं, यदि हम उसको सब्र से उसका इंतजार करते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको उसमें जीते हैं, यही तो है विश्वास के द्वारा जीवन। God doesn't promise only the mountaintop experiences, परमेश्वर केवल यही हमसे वादा नहीं करते कि हम हमेशा अच्छा ही एक्सपीरियंस पाएंगे, but God also says, लेकिन परमेश्वर ये भी कहता when है you pass through the valley of death, I shall be with you there. कि जब तुम मृत्यु की तराई से होकर चलोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। The seasons that you may be going through in your life, जिस भी परेशानी से, जिस भी परिस्थितियों से आप इस समय अपने जीवन में होकर गुजर रहे हैं, with unanswered prayers and questions, चाहे वो सवाल हो, चाहे वो ऐसे बातें हो जिसके लिए आप उत्तर चाहते हो, endure through them and you will see God's promises fulfilled. तो आप उसमें सब्र रखें, आप परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए देखेंगे। And fourthly and lastly, आखिरी और चौथी बात, living by faith means विश्वास से जीवित रहने का मतलब है being secure in God and not in yourself. परमेश्वर में अपने आप को सिक्योर पाना, ना कि अपने आप में, स्वयं में। That means the opposite of puffed up. इसका मतलब बिल्कुल विपरीत में, जिसमें कहा गया कि लोगों के मन फूले हुए हैं, The opposite of pride. और जो घमंड का बिल्कुल विपरीत है। It's a life rooted in the faith in the Lord Jesus Christ. ऐसा जीवन जिसमें जो जड़ पकड़ता जाता है प्रभु यीशु मसीह में। So my dear friends, the book of Habakkuk, the prophet Habakkuk, इसलिए मेरे मित्रों, ये जो पुस्तक है हबक्कुक नबी की, is calling us to examine our lives today. आज हमें सिखा रही है कि हमें अपने जीवन को एग्जामिन करना And है। I want you to do one thing this week. और मैं चाहता हूँ आप एक बात करें इस हफ्ते में। If the Lord has spoken to you through the word, यदि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत की है, identify where you are living a puffed up life, in which area of your life you have this puffed up, prideful things happening in your life. और आप इस बात को अपने आप में जानते, कोई ऐसी बात है आपके जीवन में जिसमें किसी प्रकार का घमंड या किसी प्रकार का फूलापन आपके जीवन में है, And if you can't identify, और यदि आप उसको नहीं पहचान पाते, ask in prayer, Lord, reveal to me where I am puffed up. तो प्रार्थना में आप परमेश्वर से मांगे कि पिता मुझे बताएं, मुझे प्रकाशन दें कि क्या ऐसा स्थान है जहाँ पर मेरा मन फूला हुआ है, Where I am living by self-sufficiency, relying only on myself. कहाँ पर मैं आत्मनिर्भर हूँ और केवल अपने आप पर ही निर्भर रहकर जीना चाहता हूँ या जी रही हूँ। And secondly, और दूसरी बात, hang on to the promises. And what is that one promise you need to live by in the word? Write it down and hang on to that promise. तो एक आयत को या एक परमेश्वर के वायदे को आप अपने पास लिख लें और उसको पकड़े रहें, जिससे आप हर दिन जीवन जी सकते हैं। This week, look into the word, your favorite verses, your favorite promises, or any time that God spoke to you personally. और इस हफ्ते में आप वचन में उन आयतों को, उन वायदों को ढूंढे जो आपने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सामने वचन पढ़ते समय पाए हैं। Make it yours that I'm going to live by this promise this week or this month. तो आप उस आयत को अपना बना लें और प्रार्थना करें और इस बात में अपना निश्चय करें कि मैं इस आयत को, इस वायदे को पकड़ा रहूंगा इस हफ्ते के लिए या इस पूरे महीने के And लिए। lastly, this week, और आखिरी बात मैं बोलूंगा इस हफ्ते में, in which area of your life would you choose faith over sight, living by faith rather than living by sight? और इस हफ्ते में आप अपने जीवन में क्या चुनेंगे, विश्वास या जो आपको दिखाई देता है? Only the Lord and His Spirit can reveal that area in your life today. केवल परमेश्वर और उसकी आत्मा इस बात को आपके सामने प्रकाशन दे सकती है That you would choose living by faith rather than by sight. कि आप विश्वास के द्वारा विश्वास को चुनेंगे बजाय इसके कि क्या देखते हैं। May the Lord help us through this word. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दे।